Hello everyone, hope you all are safe and healthy. Today we are going to discuss our first chapter of science and its name is Plants the Producers. As it is coming on your screen, so please focus on the chapter. Let's see what is given here. All of us eat fruits and vegetables, but have you ever wondered where they come from? So here what they are asking to us that you have fruits and vegetables and you eat these fruits and vegetables in your daily life, but have you ever thought that from where we are getting? So then again it has written that all fruits and vegetables that we get come from the plants, but it is saying that all fruits and vegetables that we eat come from plants. The animal world depends either directly or indirectly upon plants for food. Now, what another thing it has told us that animal world depends. Animal world including human being. It is also including human being in that. So this directly or indirectly depend upon plants. And why it is saying like this? Because from where do we get food? We get food from plants only, and similarly animals also get food from plant. But here now see it is asking one question that have you ever thought where plants get their food? It is saying to us that have we ever tried to think on this topic that from where these plants are getting their food, as these plants are providing food to us, that's okay, but from where they are getting. Now see, it has given furthermore that green plants are living organisms that make their own food. What it is telling us, it is as it has earlier asked the question, so now it is giving answer also that green plants are the living organisms that make their own food. So here I want to clear you one thing, that on earth there are three types of living organisms. These are plants, animals, and human beings. And within these three types of living organisms, only the plants are there that can prepare their food by themselves. So they are called the producers. What it is saying? It is saying that green plants are living organisms that make their own food and they are called the producers. Again, I want to tell you that why they are saying the green plant as a producer, because they prepare food by themselves. And as now green plants are preparing their food, so now here we should think that in which part green plants are producing their food. So what it is telling us? It is telling us that it is the green leaf that makes food for plant. Which part of the plant is preparing food? Green leaf. Green leaf that makes food for plant. Now what it is saying, see further, that leaves are green in color. What it is saying? It is telling us that leaves are green in color. But why these leaves are green in color? So here it has also told us that these leaves are green in color due to the presence of green colored substance called chlorophyll. A green colored substance present in leaf which is responsible for the color of the leaf. This substance is called chlorophyll. Now let us discuss one detailed structure of leaf as it is given here. You can see on a screen. Here in below side you can see one stamp is given here, and this stamp is called one structure is given here, and this is called leaf stalk. Why we are this structure is called leaf stalk, and this structure attaches leaf to the stem, and this structure attaches leaf to the stem. Similarly here one broad flat green part is there, and this broad flat green part of the leaf is called the lamina. Now you can see one line is coming from the center, and this line, this main vein running along the center, we call this line as a midrib. But we call this line? We call this line as a midrib, which is coming along the center. Now here one more thing you can find, that from this midrib the small veins are coming, but we call these small veins, these are called the side veins. And after that one part is left, that is the tip of the leaf, and this tip is called the
apex. This tip is called the apex. So here what we have learned, here we have learned the structure of the leaf, where it has told us the different parts of the leaf, what they are. First is leaf stalk. Leaf stalk is the part that attaches leaf to the branch. Second is lamina. Lamina or leaf blade, what it is, this is the broad flat green part of the leaf. Similarly, then it has one midrib in the center. This midrib is the main vein running along the center. Then it has side veins from which are arising from midrib, and then it has apex, that is called the tip of the leaf. Now let's see further what is given here. What it is saying now, turn the leaf over and look closely using a magnifying lens. Now what it is saying, you have seen all the parts of the leaf, but now you should look over the leaf using a magnifying lens. Now what you will get there? There are many tiny holes called the stomata. What are present there? There are present many tiny holes. Tiny holes मतलब छोटे छोटे से holes present हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. अब ये स्टोमेटा कहाँ होते हैं? दीज आर मोर इन नंबर ऑन द अंडर साइड. अंडर साइड हम कहेंगे मतलब लीफ के अंदर. लीफ के अंदर मतलब लीफ की जो ऊपर की लेयर है वहाँ पर नहीं है, उसके अंदर होते हैं. तो आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दीज स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बिलो साइड ऑफ द. बिलो क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि उसके अंदर हैं, तो आपको ज़्यादा ये स्टोमेटा कहाँ मिलते हैं? लीफ के नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा मिलते हैं. और इनका क्या रोल होता है? दे हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ. ये किस में मदद करते हैं? ये प्लांट को ब्रीदिंग में मदद करते हैं. नाउ अब देखिए क्या कह रहा है. अनदर टॉपिक इज देयर, फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स. अब ये हमसे ये कह रहा है कि हम कैसे फूड प्रिपरेशन इन प्लांट मीन्स कि प्लांट्स कैसे फूड को प्रिपेयर करते हैं. नाउ इट इज़ गोइंग टू टेल अस हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. So as I told you earlier that leaves prepare food for plants, this I told you, and even this I have also explained that they are therefore called the kitchen or the food factories of the plants. प्लांट्स कंबाइन. नाउ अब ये ठीक है, हमारे लीफ जो है वो एक फूड फैक्ट्री या किचन की तरह काम करती है, जो कि हमारे प्लांट के लिए खाना बनाती है. लेकिन अब ये प्रोसेस होता कैसे है? अब देखिए क्या बता रहा है कि जो हमारा प्लांट है, प्लांट कंबाइन, वो क्या करता है? इट कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम CO2 गैस भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद वाटर एंड मिनरल्स. क्या करता है प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर और मिनरल्स के साथ मिला देता है. द लीव देन यूज दीज मिनरल्स. उसके बाद क्या करती है? लीव्स का क्या काम होता है कि लीव्स ये मिनरल्स को, सनलाइट को और क्लोरोफिल को, द लीव्स देन यूज दीज मिनरल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड फॉर द प्लांट. फिर क्या होता है कि ये लीव हमारे मिनरल को, सनलाइट को और क्लोरोफिल को मिला के प्लांट के लिए फूड बनाती है. अब ये सब चीज़ें होती कैसे हैं? फिर से एक बार देख लीजिए. मैंने क्या कहा आपसे कि हमारी लीफ एज अ फूड फैक्ट्री या किचन काम करती है. ये कैसे होता है? प्लांट इसमें क्या करता है? प्लांट इसमें कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर और मिनरल्स के साथ. और लीफ क्या करती है? इन मिनरल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल के साथ फिर सनलाइट को और क्लोरोफिल को यूज़ करके, सनलाइट को और क्लोरोफिल को यूज़ करके क्या करती है? अब प्लांट के लिए खाना बनाती है. अब ये ठीक है, हमने ये तो कह दिया कि लीव्स में मिनरल्स होते हैं और फिर वो सनलाइट और क्लोरोफिल यूज़ कर लेती है. लेकिन अब ये सारा मटेरियल हमारी लीफ तक पहुंचता कैसे है? हाउ डू लीव्स गेट दीज मटेरियल्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट? सो व्हाट इट इज़ सेइंग, द रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. ये जो हमारे प्लांट की रूट्स होती हैं, ये रूट्स क्या करती हैं? ये सॉइल से क्या लेती हैं? दो कंपोनेंट लेती हैं. इट एब्जॉर्ब्स वाटर एज वेल एज मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. सिमिलरली दूसरा काम क्या होता है? द स्टेम कैरीज दीज मटेरियल्स टू द लीव्स. अब आपको ये ग्रीन स्टेम्स दिख रहे हैं, ये ग्रीन स्टेम्स का क्या काम होता है? दीज ग्रीन स्टेम्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव. ये रूट्स से लेके लीव्स तक ये सारा सामान पहुंचाते हैं. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एयर. और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कहाँ से मिलती है प्लांट को? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स हमारा एटमॉस्फेयर से क्या करता है? ले लेता है, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब. अब
वो कैसे करता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप लीफ को देखेंगे, यू सी इन लीफ बट यू विल फाइंड दैट स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड। उस अंडर साइड वाले स्टोमेटा को, जिसको हम, ये देखिए ये लीफ है और ये लीफ का स्टोमेटा प्रेजेंट है। ये लीफ के स्टोमेटा को हम नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन इफ़ वी आर यूजिंग मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है? जो किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल को भी बड़ा करके दिखा देता है। तो अगर हम मैग्नीफाइंग लेंस से लीफ के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वी विल फाइंड स्टोमेटा देयर। स्टोमेटा आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल में दिया है, ये स्टोमेटा एक छोटे से पोर्शन के लीफ से स्टोमेटा दिखाया गया है। व्हाट इज दिस स्टोमेटा? दिस स्टोमेटा हेल्प्स लीफ और प्लांट्स इन ब्रीदिंग, ये बताया था मैंने आपको। अब देखिए, अब स्टोमेटा का क्या रोल है इसमें, कि इसने हमें क्या बोला कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एब्जॉर्ब होता है एयर से, लेकिन एयर से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर कैसे जाएगा? लीव्स के। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में जो हेल्प करता है वो लीव का पार्ट स्टोमेटा है, जिसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जाती है। और उसके बाद सनरेज क्योंकि सनलाइट होती है तो सनलाइट को यूज़ करता है, और ये सनलाइट का क्या काम होता है? सनलाइट इसे एनर्जी देता है सो दैट इट कैन प्रिपेयर फूड। तो अभी हम यहाँ पे क्या समझे कि जो भी मटेरियल हमारे लीव्स को चाहिए वो कहाँ से आता है? हाउ डू लीव गेट दीज मटेरियल टू मेक फूड फॉर द प्लांट? एक बार फिर देख लेते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। समझ में आ गया? रूट क्या करता है? वाटर और मिनरल ले लेता है। द स्टेम कैरीज दीज मटेरियल्स टू द लीव्स। इस मटेरियल को लीव्स तक पहुंचाने का काम हमारे स्टेम का होता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एयर एंड सन रेज प्रोवाइड एनर्जी। ठीक हो गया। नाउ सी व्हाट इट इज सेइंग, रेसिपी फॉर प्लांट फूड। रेसिपी मीन्स हाउ प्लांट मेक देयर फूड। सो व्हाट इट नीड्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड बाय द प्लांट। बेसिक चीज़ जो हमारे प्लांट को फूड बनाने के लिए चाहिए वो क्या है? व्हाट डू प्लांट नीड? प्लांट नीड सनलाइट, वाटर एंड मिनरल, then carbon dioxide, then chlorophyll. Again you can see that plant needs sunlight, water and minerals, carbon dioxide and chlorophyll. Now see what it is saying. The sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll are needed by leaves to make their own food. ठीक हो गया। अब क्या है, ये सारे मटेरियल हमारे लीफ को मिल गए। अब फूड कैसे बनेगा इसकी देखिए एक रिएक्शन है। व्हाट इज रिटन हियर, वाटर प्लस मिनरल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस इनटू प्लांट फूड। लेकिन कैसे? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसने क्या लिखा है फिर से समझिए, वाटर प्लस मिनरल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गेट चेंजेस इनटू प्लांट फूड। फिर से एक बार देखते हैं, ये कह रहा है कि जब हम पानी को लेंगे, मिनरल्स को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, किसको? पानी को लेंगे, मिनरल्स को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, तो सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों होने चाहिए। सनलाइट भी होनी चाहिए और जो ग्रीन लीफ है, जो ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो होना चाहिए। तो जब ये तीनों मटेरियल के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल होगा तो हमारा क्या बन जाएगा? प्लांट फूड बन जाएगा। अब ये सारी चीज़ें यूज़ करके, ये सारी रेसिपी यूज़ करके जब प्लांट ने अपना फूड बना दिया, तो ये जो इतना सारा प्रोसेस हुआ कि रूट्स ने कुछ एब्जॉर्ब किया, फिर स्टेम ने उसे लीव्स तक पहुंचाया, फिर वहाँ स्टोमेटा ने कुछ हेल्प करी और फिर जाके हमारा खाना बना सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सो सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो इट इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। क्या कह रहा है? ये जो पूरी प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लांट में खाना बनने के लिए वाटर, मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है वो मिल जाएगा, लेकिन साथ ही सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों का ही प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं होती तो प्लांट अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि ये खाना हमारा प्लांट जो प्रिपेयर कर रहा है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट
and synthesis means to mix together. Photo means light and synthesis means to mix together. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लाइट की प्रेजेंस में अलग अलग मटेरियल को मिक्स किया. यही तो हुआ है ना पूरे प्रोसेस में. प्लांट ने क्या किया? प्लांट ने वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब को किस में मिक्स कर दिया? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिक्स करके प्लांट का फूड बना दिया. अब देखिए यहाँ लेट्स रिवाइज. हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज ये पढ़ा कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. इस वजह से हम प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं. प्लांट्स ही सिर्फ एक ऐसी लिविंग बीइंग है अर्थ में जो अपना खाना खुद बना पाती है और वो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स. सेकेंड थिंग हमने ये पढ़ी कि प्लांट को खाना बनाने के लिए जो हेल्प करता है वो है ग्रीन लीफ. फिर हमने ये पढ़ा कि these leaves are green due to the presence of a colored substance called क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की वजह से लीफ हमारी ग्रीन कलर की होती हैं. फिर हमने एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ा जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक लीफ स्टॉक होता है, लैमिना होता है, मिडरिप होता है, साइड वेन होता है और एपेक्स होता है. इसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारी लीफ होती है, लीफ के अंदर साइड अगर हम देखें, लीफ के अंडर साइड में हमारे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं और इन होल्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. ये जो स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होते हैं ये हेल्प करते हैं लीफ को ब्रीदिंग करने. ब्रीदिंग करने का मतलब होता है कि लीफ कुछ गैसेस को अंदर लेता है, इनहेल करता है और कुछ गैसेस को एक्सहेल करता है और इस चीज़ में मदद करता है स्टोमेटा. देन वी केम हियर. फिर हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में कैसे फूड प्रिपेयर होता है. इसके लिए हमने ये चीज़ जान ली थी कि जो हमारी ग्रीन लीव्स हैं वो एज अ किचन और अ फूड फैक्ट्रीज़ की तरह वर्क करती हैं जहाँ पे कि हमारा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को मिक्स करता है और ये सारे चीज़ों का मिक्सचर जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है और जब ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं उसके बाद हमारा प्लांट एक फूड बनाने में हमारा प्लांट पॉसिबल होता है कि हमारे प्लांट का फूड बन जाए. और इन सारी चीज़ों में जो हमारी रूट्स होती हैं वो प्लांट को मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है. जो हमारी स्टेम होती है ये मिनरल और वाटर लीव्स तक पहुंचाती है. जो हमारी लीफ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है एयर से और उसके बाद लीफ में ही क्लोरोफिल होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में उसका खाना बन जाता है. और ये सारे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. और इसको हम लिखते कैसे हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वाटर प्लस मिनरल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ. ये जो एरो है इसको हम क्या बोलते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ. किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल. पूरा खाना क्या बन गया? प्लांट का पूरा फूड बन गया. So I hope that you have enjoyed this video. Now your today's homework is that you have to take your fair notebook of science and there what you will do, you will write the chapter number, chapter name, today's date and after that in blank side of that page. एक तो आपकी कॉपी में लाइनिंग पेज होगा, एक उसके लेफ्ट साइड में आपका ब्लैंक पेज होगा. तो ब्लैंक पेज में you have to draw this structure of leaf. You have to draw and color and label the structure of leaf. This is your homework. I hope you have enjoyed this video. Thank you and have a nice day.